गुड मॉर्निंग क्लास। आज है 8 जुलाई 2026। हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 की मैथ का चैप्टर नंबर 1 अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्यूब्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज क्यूब्स? अ क्यूब इज अ सॉलिड फिगर हुज ऑल साइड्स मीट एट राइट एंगल्स एंड आर इक्वल। ठीक है, ज्योमेट्री में जो हमारा एक सॉलिड फिगर है जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, दीज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर मीटिंग एट राइट एंगल। दिस इज राइट एंगल, दिस इज राइट एंगल, दिस इज राइट एंगल, दिस इज राइट एंगल, दिस एंगल इज राइट एंगल, दिस इज राइट एंगल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, these all angles are equal and these are right angles. और न्यूमेरिकल्स में हम क्या है क्यूब्स के बारे में, when a number is obtained by multiplying itself, when a number is obtained by multiplying itself three times, ठीक है, the result which we will get is the cube of the number which we have multiplied three times. ठीक है, see, take any number, say 2. क्या डेफिनेशन थी? when a number is multiplied three times by itself, when a number is multiplied by three times, 2 is multiplied by three times, the result will get 8. So 8 is the cube of 2. We can write this also as, when we multiply 2 into 2 into 2, we can write like this. It means 2 raised to the power 3, or what we say, 2 cubed, 2 cubed, 2 cubed. ठीक है, what we have done in this process, 2 is cubed, 2 is cubed, and the result is 8. What is this? This is cube of 2. Can you understand this? When you are writing like this, it means 2 cubed. ठीक है, and the result will come, you call it cube of 2. ठीक है, same way 3 into 3 into 3, this is simply multiplication. When you write 3 like this, it means 3 cubed, 3 cubed, and result is what? 27. And what is this 27? Cube of 3. ठीक है ना, 27 is cube of 3. तो इसका जर्नल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? से एनी नंबर n, when n is multiplied by 3, sorry, n is multiplied by itself 3 times. This is simple multiplication process of a number, and when we represent it like this, this is n cubed, and we'll get the result, say any result, m. ठीक है, in this case this is a multiplication process, this is called n
cubed, and this is called cube of n. m is cube of n. ठीक है. n cube is m. Now, what is perfect cube? What is perfect cube? The cube of any natural number is perfect cube. Means we have, see, this n is representing numbers. This number may be fraction, this number may be decimal, this number may be any number. But perfect cube is specifically cube of natural number. Cube of natural numbers. Understood? When natural numbers are cubed, the result will called perfect cube. ठीक है? Cube of natural number is perfect cube. सिर्फ नेचुरल नंबर का जब हम क्यूब करते हैं, जो रिजल्ट आता है उसे हम परफेक्ट क्यूब बोलते हैं. जैसे 1 को आपने क्यूब किया, मींस 1 is cubed. 1 is cubed how? 1 raised to the power 3 and you will get the result 1. ठीक है. When 2 is cubed, how will you write? You will write and 2 raised to the power 3, that is 2 is cubed and the result is 8. ठीक है. 3 is cubed, you get the result 27. ठीक है. These 1, 8, 27, since 1, 2, 3, these are the natural numbers, then these cubes are perfect cube. ठीक है. नेचुरल नंबर के जो क्यूब्स होते हैं वो परफेक्ट क्यूब्स होते हैं. अदरवाइज जब हम किसी भी नंबर को उसी से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज सिंपली क्यूब. ठीक है. इस तरीके से हम देखेंगे कि फ्रैक्शन नंबर का क्यूब्स कैसे होगा. क्यूब ऑफ फ्रैक्शनल क्यूब ऑफ फ्रैक्शन नंबर से हमारे पास में एक है फ्रैक्शन 2/5. हमारी डेफिनेशन के हिसाब से क्या, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर 3 टाइम्स टू फाइंड द क्यूब ऑफ दिस नंबर. इन दिस केस व्हाट इज दिस? 2/5 is cubed. Fraction 2/5 is cubed. 2 into 2/5 into 2/5 into 2/5. What the result you will have? 8/125. So you will get the cube of a fraction which is also a fractional number. ठीक है. Let's take one more example. 6/7. How will you get the cube of this number? By multiplying 6/7 to itself. 6/7 into 6/7 into 6/7 and your result is 216 upon 343. Understood? So 216 upon 343 is cube of 6/7 fraction. Then cube of decimal numbers. Decimal number.
cube of decimal number, we have to follow the same process. Like we have a decimal number, say 1.5. How will you obtain the cube of this number? By multiplying this number itself 3 times. So how will you read this? 1.5 is cubed. 1.5 number is cubed, and 1.5 into 1.5 into 1.5. What will be the result? 3.375. So 3.375 is cube of 1.5. ठीक है? This is the way you can do the cube of decimal numbers. Now see, कोई भी नेचुरल नंबर जब हमें उसके एंड में एक जीरो लगता था, तो फिर हमें उसके स्क्वायर में कितने जीरो लगते थे? 100 के स्क्वायर में कितने जीरो लग गए? 2. ठीक है, ये कैसे मिला था हमको? 10 इंटू 10 से 100. इन केस ऑफ क्यूब क्या होगा? इन केस ऑफ क्यूब क्या होगा? 10 इंटू 10 इंटू 10, यू गेट द रिजल्ट. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? कोई नंबर अगर उसके पीछे 3 जीरो हैं, 3 जीरो का एक सेट बन रहा है, इसका मतलब कि दैट नंबर मे बी अ क्यूब. और एनी नेचुरल नंबर जिस नंबर के पीछे एक जीरो लगा हुआ है, तो उसके क्यूब के पीछे 3 जीरो लगे होंगे. ठीक है, कोई नंबर अगर हमारा 2 जीरो लगे हुए हैं, तो उसके क्यूब के पीछे हमारे 6 जीरो लगे होंगे. ठीक है, एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि अगर वो स्क्वायर है तो उसके पीछे 2 जीरो लगे होंगे, और अगर वो क्यूब है और नंबर के पीछे एक जीरो है तो उसके पीछे 3 जीरो लगे होंगे. और इसी मल्टीपल में चलेंगे. अगर 2 जीरो है तो 6 जीरो लगे होंगे, और अगर 3 जीरो है तो 9 जीरो लगे होंगे. ठीक है, क्लास अब हम प्रैक्टिस करेंगे 1 से लेके 20 तक के क्यूब्स की, और देखेंगे कि उसमें क्या पैटर्न हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है, तो क्यूब ऑफ 1, व्हाट इज क्यूब ऑफ 1? 1 is cubed, you get the result 1. When 2 is cubed, you get the result 8. When 3 is cubed, you get the result 27. When 4 is cubed, you get the result. When 4 is cubed, you get the result 64. When 5 is cubed, you get the result 125. ठीक है, इसको हम थोड़ा सा पास लिखते हैं. See, 1 is cubed 1, 2 is cubed 8, 3 is cubed 27, 4 is cubed 64, 5 is cubed 125, 6 is cubed
216, 7 is cubed, 343, 8 is cubed, 512, 9 is cubed, 729, 10 is cubed, 1 2 3. ठीक है, देन 11 is cubed, you get the result 1331. 12 is cubed, you get the result 1728. 13 is cubed, you get the result 2197. 14 is cubed, you get the result 2744. 15 is cubed, you get the result, what is the result? 3375. 16 is cubed, you get the result 4096. 17 is cubed, you get the result 4913. We'll check this, okay. 18 is cubed, you get the result 5832. 19 is cubed, you get the result 6857. 20 is cubed, you get the result 8000. ठीक है, we have to check the cube of 49 and 19. Let me just cross check it. Okay, this is 6859. Now the cube of 19 is 6859 and cube of 17 is 4913. Let's check. Okay, these are the cubes you must remember. Now see what patterns we can draw. See, जब हमारे पास 1 का क्यूब आया तो हम 1 का क्यूब हमें निकालना था, तो हमारा एंड में 1 आया, 2 के क्यूब में एंड में 2 आया, 8 आया, 3 के क्यूब में 7 आया, 4 के क्यूब में 4 आया, 5 के क्यूब में 5 आया, 6 के क्यूब में 6 आया, 7 के क्यूब में 3 आया, ठीक है। 8 के क्यूब में क्या आया? 2 आया, 9 के क्यूब में 9 आया और 10 के क्यूब में तो 0 आया। क्या पैटर्न हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब यूनिट प्लेस में हमारा 1 है 11 तो 1 आ रहा है, मतलब यूनिट प्लेस अगर 1 है तो हमारा रिजल्ट क्यूब में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, ठीक है। अगर 2 है तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। 3 है तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। 4 है तो क्या रिजल्ट आ रहा है? 4 आ रहा है। 5 है तो क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। 6 है तो क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। 7 है तो क्या आ रहा है? सी 7 है तो हमारा क्या आ रहा है? सी 3 3, ठीक है। 8 है तो क्या आ रहा है? 2, वी कैन राइट हियर 8 2, ठीक है। और 9 है तो क्या आ रहा है? 9, ठीक है। और अगर लास्ट में 0 है तो क्या आ रहा है? 0 ही आ रहा है, बट इट शुड बी इन set of 3 0. This pattern you can see. कोई भी क्यूब होगा हमारा, अगर उसके यूनिट प्लेस में 1 आ रहा है तो क्यूब के भी यूनिट प्लेस में 1 आएगा। अगर हमारा नंबर 2 है यूनिट प्लेस में
तो 2 और 8 है, तो हमारा यूनिट प्लेस में क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, अगर 3 है तो 7, 4 है तो 4, 5 है तो इससे इस पैटर्न से आप क्या पता कर सकते हैं? इस पैटर्न से आप पता कर सकते हैं कि यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा। ठीक है, हमने चेक किया था कौन कौन से नंबर थे? 1 8 7, 1 8 7, 4 5 6 3 एंड 9। तो कौन से नंबर जो थे वो हमारे बच गए? जीरो हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। What does it mean? Means all number can be at the unit place and the number may be a cube. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। But what you have to remember means अगर 1 है तो वो नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 होगा, और अगर 2 है तो यूनिट प्लेस पे 8 होगा, 3 है तो यूनिट प्लेस पे क्या होगा? 7 होगा, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6 और 7 है तो 3। ठीक है, और 8 है तो 2 और 9 है तो 9 9। आपको ये देखना है। ठीक है, तो कौन कौन से नंबर है जिनके पीछे वही आ रहा था? 1 के पीछे 1 आ रहा था, 2 एक ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में 8 आ रहा था, 3 के लास्ट में 7 आ रहा था, 4 के लास्ट में सेम है, 5 के लास्ट में सेम है, 6 के लास्ट में सेम है, 7 के लास्ट में आपका 3 आ रहा था, और 8 के लास्ट में आपका 2 आ रहा था, और 9 के लास्ट में आपका 9 ही आ रहा था। मीन्स ये वो नंबर हैं, ठीक है, जिनको आप चेक कर सकते हैं कि अगर यूनिट प्लेस में 2 है तो आपका उसके क्यूब के यूनिट प्लेस में 8 आएगा, और अगर 8 है यूनिट प्लेस पे तो उसके क्यूब में 2 आएगा। सेम वे अगर 3 है तो उसके यूनिट प्लेस पे 7 आएगा, और अगर 7 है तो उसके यूनिट प्लेस पे 3 आएगा। दिस पैटर्न वी हैव ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द क्यूब ऑफ 1 to 20, and the rest of the number we have seen that अगर 1 है तो 1 आएगा, 4 है तो 4 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, 9 है तो 9 आएगा। ठीक है, तो you can remember these numbers and you have to remember the cubes up to 20 also। हमारा 19 का क्यूब क्या था? 6859। ठीक है, इसकी हम नेक्स्ट क्लास में भी प्रैक्टिस करेंगे, और आगे फिर हम क्यूब के बारे में पढ़ेंगे और क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे कि रामानुजन नंबर क्या है, टैक्सी कैब नंबर, इसके बारे में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।